हाँ जी बेटा, स्टार्ट स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं. Good morning again. I think till now many students have joined, and we were doing 12th class accountancy chapter 5, and yesterday I introduced investing activity. So before going to the activity, I think we have done all these questions. I have told you all these questions. This machinery account we have already done. Yes, investment account question also we have done. So before going to the today's topic, just recall the previously done topics, whatever we did previously. I'm just going back to the format of the cash flow statement, this one. So in this manner, you have to do the questions. I'm just reading it so that there is a revision before starting the questions. First part is the first activity is the first of all, at the top of the format, you have to write cash flow statement. Just like at the top balance sheet, we write balance sheet statement of P&L. So here we have to write cash flow statement for the year ended. And which method we are doing? Indirect method. And this cash flow statement is prepared under accounting standard AS. The short form of accounting standard is AS 3 and in bracket revised. So three activities are there. First activity cash flow from operating activity. अगर किसी ने क्लास अटेंड बीच में नहीं की थी, स्किप कर दी थी, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो बेटा. So in first activity cash from operating activity there were 4 steps. First step was finding out the net profit before tax. For that I had told you doing the note making. Okay, so we were doing the note making in first step. So first step is net profit before tax, and for doing this, what we have to do? Starting point is profits, which is equal to closing year profit or the current year profit minus previous year profit. Then the 4 items will be added in that, which for provision for tax of current year. Basically आपको learn ही करना है और कुछ नहीं है इसमें. Provision for tax of current year, proposed dividend previous year, and interim dividend during the year. Which left? Tell me students, which left here? I told you 4 items to be added, 3 I have told you which is left. Provision for tax of current year, proposed dividend of previous year, interim dividend. Yes, very good Harshita and few other students. Transfer to reserve, that will be added. Very good. Then deduct. What is to be deducted? Tell me fast. What is to be deducted in the first step? What is to be deducted in the first step? Yes, refund of tax. Not only the tax, it's refund of tax. And it hardly will be given in the question. Very rarely it will be given in the question. So once you got the net profit before tax, then you will be starting your cash flow from operating activity. So it is up to you whether you want to do this step inside the question or outside the question as a working note. So if you are doing it in working note, you have to mention it here, net profit before tax, working note number 1. If you are doing here only, then it's okay. So it's up to you कि आपको फॉर्मेट के अंदर करना है ये वाला स्टेप या फॉर्मेट के बाहर करना है. Now step 2. In step 2 extraordinary items will be rarely used, तो आप उसको कंसिडर ना करें, बस माइंड में रखें उसका ट्रीटमेंट, बहुत ही रेयर यूज होगा उनका भी. एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, दिस इज द स्टेप 2. तो हमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी ऐड करनी है, आप याद कर लें प्लीज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ऑल दीज आइटम्स विल बी गिवन. ओनली 2-3 आइटम्स मे बी गिवन. डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अब नहीं होंगे आपके क्योंकि वो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग सेम ईयर में ही राइट ऑफ हो जाते हैं. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड. आपको कैसे पता चलेगा ये अमोर्टाइज हुए? करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को आप मैच करेंगे. अगर करंट ईयर में सपोज 80,000 के दे रखी है गुडविल और प्रीवियस ईयर में आपकी गुडविल 1 लाख थी, तो आप देखो पिछले साल आपके पास 1 लाख की गुडविल थी, इस साल 80 हो गई, तो व्हाट डज इट मीन? अगर कम हो गया है तो इट मीन्स, यस वेरी गुड, इट मीन्स कि आपकी गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट अमोर्टाइज हो गए हैं. और अगर इंक्रीज हो रहे हैं, लास्ट ईयर आपकी गुडविल 1 लाख थी, करंट ईयर में आपकी गुडविल 2 लाख है, तो इट मीन्स आपने परचेज किया है गुडविल को. इफ एनी
asset is purchased, whether it is tangible, non intangible, that will be appearing in the investing activity. तो अगर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर नहीं आएगा, और अगर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा. देन इंटरेस्ट पेड, आपको क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, whether it is on long term borrowing or short term borrowing, so that will be added here. फाइनल आइटम, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, या तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा. अगर गिवन नहीं है, देन वी हैव टू प्रिपेयर द एसेट अकाउंट विच वी लर्न येस्टरडे. तो उस एसेट अकाउंट में आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो उस एसेट अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस आता है वो यहाँ पर, अगर लॉस है तो प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा. Last item, increase in provision for doubtful debt. So you can count how many items are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I am assuming interest as one item, whether it is on short term or it is on long term. First step में 4 items plus होंगे, second step में 6 items plus होंगे. These are the maximum number of items. इससे कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. Then you have to deduct 5 items. First step में 1 item deduct होता है और यहाँ पर 5 items deduct होंगे. ऑल द अदर इनकम, जिनको अदर इनकम के बारे में अब नॉलेज हो गई है कि अदर इनकम क्या होता है, तो आपको ये एग्जांपल भी याद नहीं रखने हैं. ऑल द अदर इनकम मीन्स द इनकम विच आर नॉट द ऑपरेटिंग इनकम, विच आर द इन्वेस्टिंग इनकम, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर. लॉजिक क्या है, यहाँ से क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो P&L में प्लस हो चुकी हैं, जबकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो हमारी इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए हम उनको यहाँ से माइनस कर देंगे और 2 ट्रीटमेंट होगी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम करेंगे तो वहां पर प्लस कर देंगे. क्या क्या माइनस करना है आपने, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. इंक्रीज इन प्रोविजन प्लस होगा, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस हो जाएगा. स्टेप 2 का आंसर आ जाएगा बेटा इसके बाद आपके पास. दैट आंसर विल बी नोन एज स्टेप 2 आंसर. दिस विल बी नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फाइनल आप थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे. थर्ड स्टेप में क्या है, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस. बैलेंस शीट में जाओगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वाला कॉलम चेक करोगे, सारे करंट एसेट्स को आपने कंसिडर करना है एक्सेप्ट 2. याद है तो बताइए कौन से वाले 2 करंट एसेट्स यहाँ पर आपने कंसिडर नहीं करने हैं. विच 2 करंट एसेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर, प्लीज टेल मी. यस, वेरी गुड प्रियांशी. एक और भी बताया था बेटा मैंने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स. दीपक, लैंड इज करंट एसेट, यू आर राइटिंग लैंड. इज लैंड करंट एसेट दीपक, प्लीज टेल मी. यस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये शुभांगी, करंट इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड. तो ये 2 करंट एसेट्स आपने कंसिडर नहीं करने हैं. आपने पढ़ा था जब हमने करंट एसेट्स के हेड्स किए थे तो टोटल 6 हेड्स वर देयर, सब हेड्स इन करंट एसेट. मैं आपको याद दिला देती हूँ. करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. तो उस 6 में से आप 2 हटा देंगे. अगर क्वेश्चन में वो 2 गिवन भी हैं तो आप उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन के एंड में कंसिडर करने हैं आपने, जो मैंने अभी नहीं बताया. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के 4 सब हेड होते थे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया था. शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी कंसिडर नहीं होगा यहाँ. तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सिर्फ 2 को ही कंसिडर करना है. फर्स्ट ट्रेड पेबल, सेकंड अदर करंट लायबिलिटी. शॉर्ट टर्म प्रोविजन कंसिडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपका आता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो ऊपर वाले स्टेप में कंसिडर हो गया है. दूसरा आपका आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमने स्टेप 1 में कंसिडर कर लिया है. तो इसीलिए आप ये 2 चीजें यहाँ कंसिडर नहीं करोगे. वैसे भी आपने माइंड में रखना है, एनीथिंग विच इज गिवन इनसाइड द क्वेश्चन दैट विल बी ट्रीटेड वंस. तो प्रोविजन फॉर डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स पहले ही आप ट्रीट कर चुके हो, तो अब उसकी दोबारा ट्रीटमेंट नहीं होगी. देन यू विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ स्टेप 3. आंसर ऑफ स्टेप 3 विल बी नोन एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आप इस तरीके से 2 कॉलम बनाएंगे इसमें, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे. तो जो आपके फाइनल आंसर्स आते जाएंगे वो आप फाइनल आंसर आप हमेशा बाहर वाले कॉलम में लिखोगे. लास्ट स्टेप 4, इनकम टैक्स पेड. अब इनकम टैक्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था,
आपको बैलेंस शीट जब गिवन होगी तो 2 इयर्स के इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन होंगे, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। करंट ईयर प्रोविजन आपने ऊपर ऐड कर दिया स्टेप 1 में, प्रीवियस ईयर प्रोविजन आप यहाँ से माइनस करेंगे और उसमें से भी रिफंड माइनस करने के बाद करेंगे। जो रिफंड आपने ऊपर माइनस किया था वो रिफंड आप यहाँ से भी पहले माइनस करेंगे प्रोविजन में से, प्रोविजन माइनस टैक्स रिफंड, फिर जो नेट अमाउंट आएगी वो यहाँ पर आप माइनस करेंगे, दैट यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम मीन्स पॉजिटिव आंसर, यूज्ड मीन्स नेगेटिव आंसर। तो इधर यू हैव टू राइट फ्रॉम और यू हैव टू राइट यूज्ड। ओके, यहाँ तक मैंने कम से कम अराउंड 1 वीक से मैंने ये सब कराया है, तो अभी तक आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए, क्योंकि जितनी बार मैं हर एक क्लास में आपको पूरा रिपीट करती हूँ जो पहले किया होता है, तो जिसने क्लासेस मिस भी कर दी हैं अगर वो सुनेगा ध्यान से तो फिर वो तब भी कर सकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ लर्निंग ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब बिल्कुल उसी के नीचे आप सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे। अभी तक हम इंडिविजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, फिर हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, बट जब हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करेंगे तो वी हैव टू कंबाइन ऑल द एक्टिविटीज। So just after the one activity, we have to start another activity, like you can see here. So this activity will be known as B part. Operating activity was the A part. You can see, you have to write here A part, first activity. It's not necessary that you have to write just the alphabets. You can also write the numbers. One, first part, cash flow from operating activity. Second is the cash flow from investing activity. Now investing, we have to add up all the sale and rent received, dividend received, sale of any of the asset, whether it is tangible asset, intangible asset, or it is non-current investment. So you can see here that बेटर होगा कि आप सारे प्लस वाले आइटम्स एक साथ लिखिए और माइनस वाले आइटम्स एक साथ लिखें, माइनस वाले आइटम्स को ब्रैकेट में लिखिए। Proceeds from sale of tangible fixed assets, then proceed from sale of intangible fixed assets like goodwill. क्वेश्चन में बताया है तभी आपने सेल मानना है। अगर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है तो आप अपनी मर्जी से सेल एज्यूम नहीं करोगे, आप उसको एमोर्टाइज्ड मानोगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि गुडविल सेल किया है तभी आप उसको सेल एज्यूम करोगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और आप उनको सेल कर रहे हो तो उसका इनकम। देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, जो आपने ऊपर ऑपरेटिंग में स्टेप 2 में माइनस किया था वो यहाँ पर प्लस होगा। रेंट रिसीव्ड, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, ये आपके नेगेटिव आइटम्स आ गए, क्योंकि जब भी आप एसेट परचेज करेंगे तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा। आपने ये नहीं सोचना कि एसेट तो आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो हम माइनस क्यों कर रहे हैं, एसेट पर इफेक्ट नहीं देखना, यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑन कैश, नॉट ऑन एसेट। सो परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, अगर गुडविल आपकी प्रीवियस ईयर में कम थी, करंट ईयर में ज्यादा हो गई है तो मतलब आपने गुडविल परचेज की है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया है। अभी मैं एक क्वेश्चन इसी पर कराऊंगी, फिर हम आगे का टॉपिक करेंगे। तो इसके बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा वो आप बाहर लिख देंगे। यू कैन सी हियर दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल आंसर इज रिटन इन द सेकंड कॉलम। 2 कॉलम्स, अमाउंट के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में आपके सारे कैलकुलेशंस होंगे, दूसरे कॉलम में आप सिर्फ फाइनल आंसर लिखेंगे। लाइक हियर यू कैन सी द फाइनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर इज रिटन इन द आउटर कॉलम। सिमिलरली द इन्वेस्टिंग, जो भी आप प्लस माइनस कर रहे हैं वो आपका इनर कॉलम में हो रहा है, और जो फाइनल आंसर आया है वो आपका आउटर कॉलम में आया है। रिमेंबर दैट फाइनल आंसर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आप कैश फ्रॉम लिखेंगे, और अगर नेगेटिव है तो यू विल बी राइटिंग नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग हम कल वाली क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, तो अभी मैं फाइनेंसिंग नहीं करूंगी अभी, क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्वेश्चन एक टाइप का एसेट अकाउंट रहता है, तो आज हम पहले वो करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस कर लिए थे बेटा। और जिसने अभी तक इस चैप्टर को ध्यान से नहीं किया है प्लीज स्टार्ट कर लें, क्योंकि बोर्ड में ये चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला है इस बुक में। 8 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया था। नाउ यू कैन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई एम रीडिंग, टिल देन यू कैन स्टार्ट। So from the following particulars determine cash flow from investing activity. सिर्फ इन्वेस्टिंग मांगा है तो आपने ऑपरेटिंग नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट्स, consider here not the previous year or the current year balances are not given. Here purchase and sales are given. So purchase means negative items, sales means positive items. Okay.
आपने ऊपर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये मत सोचना कि एक ओपनिंग बैलेंस है एक क्लोजिंग बैलेंस है, बिकॉज हियर डायरेक्टली परचेज एंड सेल्स आर गिवन, सो क्वेश्चन हैज बिकम इजी फॉर यू, क्योंकि आपको प्लस माइनस करके कुछ देखना ही नहीं है, डायरेक्टली बता दिया है आपको कि इतने परचेज हैं इतने सेल्स हैं. सो इन्वेस्टमेंट्स 1,80,000, purchase and sales. Purchase means negative item and sales means positive items. So you can start. I am waiting. Goodwill 2 lakh. It is only purchase. Then machinery, purchase means negative item. Machinery 440 is the purchase and sales 1,50,000. Then patents, no purchases, only sales 1 lakh. Interest received on debentures. It is a positive item. आपको interest मिला है. Dividend received on shares. ये भी आपका पॉजिटिव आइटम है. देन रेंट रिसीव्ड, ये भी आपका पॉजिटिव आइटम है. सो डू इट फास्ट. यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनेगा. अकाउंट आपने तब बनाना है जब आपको प्रॉपर बैलेंस शीट दे रखी होगी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगी. सो टू नो, टू फाइंड आउट द हिडन फिगर्स, यू विल बी मेकिंग अकाउंट. डू इट फास्ट. आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना. हो गया? Yes, this is the answer. You can see answer from here. Purchase of investment negative item. यहाँ पर इन्होंने प्लस माइनस सब मिक्स किया हुआ है, बट आप प्लीज जो सारे प्लस वाले आइटम्स हैं उनको एक साथ लिखना और नेगेटिव वाले आइटम्स को एक साथ लिखना. रीजन बीइंग, नहीं तो क्या होगा कि आप एग्जाम में प्लस वालों को, नेगेटिव वालों को भी प्लस कर दोगे जल्दबाजी में. और अपनी हैबिट बना लो कि आपने जितने भी नेगेटिव आइटम्स हैं वो सारे आपने ब्रैकेट में ही रखने हैं, अदरवाइज आप जब प्लस माइनस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, सो परचेज नेगेटिव, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव, गुडविल नेगेटिव. तो कैलकुलेशन ही करनी है आपने और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में. अच्छा शुभांगी, नेक्स्ट टाइम में नहीं दिखाऊंगी आंसर. वैसे भी प्लस माइनस ही करना था इसमें, तो तुम लोगों ने थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया प्लस माइनस करने में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैं आंसर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 39. Swan Limited had the following balances. Investments in the beginning of the period means this is the opening balance of investment. Then investments at the end of the period means this is the closing balance of investment. Now additional information is given. So if any item is given 3 times, like 2 times inside the question and 1 time outside the question, तो आप अपनी ये ट्रिक है, अगर कोई भी आइटम 3 बार गिवन है तो आप उसका अकाउंट बनाएंगे टू नो द हिडन फिगर. ओके, सो इट मींस हियर यू हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कोई भी आइटम अगर क्वेश्चन के अंदर भी है बाहर भी है तो आप उसका फिक्स्ड एसेट के जैसे अकाउंट बनाएंगे, जो हमने कल बनाना सीखा था. फिक्स्ड एसेट अकाउंट. अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की जगह आप अकाउंट का नाम रखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ओके, स्टार्ट. आई एम वेटिंग. मैं अब आंसर शो नहीं करूंगी आप लोगों को. मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ मैं आपको, आप कर सकते हैं सोल्व. ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 34, क्लोजिंग बैलेंस 28. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8400. 40% इन्वेस्टमेंट सेल किए हैं और उस ट्रांजैक्शन में आपको 8400 का प्रॉफिट हुआ है. तो पहले आप अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि अकाउंट बनाने से आपको हिडन फिगर पता चलेंगे. आपको पता चलेगा कि परचेज हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर या क्या. इन्वेस्टमेंट में डेप्रिशिएशन नहीं होता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा. देयर इज नो डेप्रिशिएशन इन इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट डेप्रिशिएशन भी किया था, बट जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें कोई डेप्रिशिएशन नहीं होता है. यस, आई एम वेटिंग फॉर आंसर. मैं अभी शो नहीं कर रही हूँ, तो 2 मिनट्स और दे रही हूँ मैं. जिसने नहीं किया है डू इट फास्ट. आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिना बनाए आपका आंसर गलत आएगा. तो मेक श्योर वेन एवर 3 times a single information is given, 3 times, 2 times inside the question, current year and previous year balance, this will be the 2 time, and 1 time outside means in additional.
then you have to make account. बिना अकाउंट बनाए आपका आंसर गलत आएगा, तो आपको ये वर्किंग करना ही करना है। जिसका भी नहीं हुआ है जल्दी से कर लो। कुछ कुछ बच्चों के आंसर मैच कर रहे हैं, कुछ के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज करेक्ट। यस, 14,400, वेरी गुड। विशा, निष्ठा, आकाश, दिव्या, you all have Anmol, Varun, not Varun, Anshika, you all have given me correct answer. चलिए अब देखते हैं कहाँ पे गलती की है, जिन स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया है। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा ऐसे क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप विल बी अकाउंट मेकिंग। वर्किंग नोट आपने पहले करना है जब भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करोगे। ओके, इन वर्किंग नोट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बैलेंस बीडी, देन बैलेंस सीडी। आई टोल्ड यू yesterday. So balance BD is 34,000, this is the opening balance, and balance CD is 28,000, which is the closing balance. Okay. उसके बाद आप देखोगे डेप्रिसिएशन वगैरह, बट इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। अब आप देखोगे कि क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ तो बताया होगा, इधर परचेजेस बताए होंगे और सेल बताया होगा। अगर परचेजेस है तो सेल विल बी द बैलेंसिंग फिगर, और अगर सेल है तो परचेजेस विल बी द बैलेंसिंग फिगर। So here it is mentioned that during the year company sold 40% of its investment held in the beginning. तो 40% निकालेंगे बेटा हम। बिगिनिंग में कितने इन्वेस्टमेंट थे आपके? 34,000। 34,000 का 40% आप निकाल लेंगे, दैट इज 13,600, एंड दे आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 8,400। सो 13,600 प्लस 8,400 टोटल हो गया। प्रॉफिट है तो आप ऐड करेंगे ना प्रॉफिट को, अगर लॉस होता तो आप इसमें से माइनस कर देते। So these investment costing 13,600 were sold at rupees 22,000. So buy bank 22. Now profit. Profit will be written on debit side. और अगर लॉस होता तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते। कल आपको समझाया था जैसे हम 11th में डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में करते थे। तो प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लिखना है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, 8,400। इसके बाद आपको सिर्फ बैलेंस करना है, जिस भी साइड आपका बैलेंस आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको सेल्स गिवन है तो आपका परचेज में ही डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, और अगर ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इतने के इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं आपने, तो आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा और बैलेंस होगा आपका वो सेल। ओके, या तो इधर अगर आपका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो सेल होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और अगर डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो परचेज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जितने भी आइटम्स हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सी एक्टिविटी में ट्रीट होगा और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी? प्लीज टेल मी। गेन ऑन, ओके वरुण, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, बताइए। इन्वेस्टमेंट ऑन, सॉरी, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या बताई थी मैंने आपको? कौन सी एक्टिविटी में ट्रीट होते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यस, वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग मी करेक्ट आंसर, वेरी गुड दिशांक। सेकंड स्टेप में माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ओके, और जो ये दो बैंक आ गए हैं आपके पास, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है आपने, क्योंकि बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी ऑलरेडी ट्रीट हो गए हैं, उनको ट्रीट करके ही आपका बैंक बैलेंस आया है। तो अब दो बैंक हैं आपके पास। क्रेडिट साइड वाले बैंक का मतलब है सेल, और डेबिट बैंक का मतलब है परचेज। तो अब इन दोनों बैंक को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रीट करोगे। अब नाउ यू विल बी मेकिंग दिस स्मॉल फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्मॉल क्वेश्चन, अभी हम स्मॉल कर रहे हैं, बट ये सारे क्वेश्चन मिलके ही फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन का पार्ट होंगे ये सब चीजें। तो अगर आप स्मॉल क्वेश्चन ढंग से कर लेते हो तो आपको फुल फ्लेज समझो हो गया, एक क्लास में ही हो जाएगा हमारा फुल फ्लेज। तो अब आप जो इस साइड आपका क्रेडिट साइड जो आपका बैंक है, दैट इज सेल। सेल मीन्स कैश इज इनकमिंग, सो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22,000, and you have to mention the working note number everywhere wherever you are doing working note. So in the format you have to mention the working note number so that the examiner is able to see your working. So you have to clarify each and everything. Then purchase of investment 7,600, purchase means negative, ये जो balancing figure आ गया, and the final answer is positive answer, 22,000 minus 7,600. So positive answer, cash flow from investing activity, which is equal to 14,400. अगर ये नेगेटिव आता तो आप फ्रॉम की जगह यूज्ड लिखते, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, 1 minute. You will not be able to do this question. Don't do it because here provision for depreciation is there, which I have not told you. This is the second type जो मैं अभी next class में कराऊंगी आपको. Okay, तो आप अभी नहीं करेंगे इसको. चलिए ये क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं. Now this question is the combination question. Combination means in this question we have to do both the activities. ऑपरेटिंग भी करनी है और फाइनेंसिंग भी करनी है. तो स्टार्ट विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कॉन्टिन्यूएशन में करेंगे आप, फॉर्मेट बनाएंगे पूरा और उसमें पहले ऑपरेटिंग के सारे स्टेप्स करेंगे और ऑपरेटिंग के फाइनल आंसर के बाद जैसा फॉर्मेट मैंने आपको क्लास की बिगिनिंग में दिखाया था आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे. ओके, स्टेप 1. चलिए स्टेप 1 के स्टेप वाइज करते हैं. पहले स्टेप 1 कीजिए एंड टेल मी द आंसर ऑफ स्टेप 1 सो दैट आई कैन डू द करेक्शन इफ यू पीपल आर डूइंग रॉन्ग. सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल. स्टेप 1 कीजिए. सारे आइटम्स नहीं होंगे, सारे आइटम्स नहीं होंगे, ध्यान रखना. हर एक स्टेप के एक एक दो दो आइटम ही होंगे तो आप जल्दी से कर लेंगे. यस, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनेगा शुभांगी. जब भी आपको एडिशनल में कुछ भी गिवन हो तो आप उसका अकाउंट बनाएंगे. ओके, ऐसे ही टैक्स अकाउंट भी बनता है बट अभी मैंने सिखाया नहीं है आप लोगों को टैक्स अकाउंट बनाना, तो ये वाला क्वेश्चन बिना अकाउंट बनाए भी हो जाएगा टैक्स के लिए. बट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना है. एंड एक आपको टिप देना चाहूंगी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए. जब भी आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे कैश फ्लो वाला जिसमें सारी एक्टिविटीज होंगी, सो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स क्योंकि उस अकाउंट के थ्रू आपको डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट, लॉस, बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आने वाली है. तो आप पहले अकाउंट बनाइए इन्वेस्टमेंट का. सबसे पहले आपको अपना वर्किंग नोट करना है. प्रिपेयर अकाउंट. यस अनुष्का, आई हैव सीन योर आंसर. अनुष्का कोठारी, बट आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आंसर. Prepare investment account. Prepare investment account first. अगर कुछ बच्चे हैं जो बिना शॉर्टकट लेंगे और बिना अकाउंट के भी करने लग जाएंगे, but there may be more chances of error if you people are taking shortcuts. उसमें आपके गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ध्यान रखना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अकाउंट बनाना है. यस, फर्स्ट स्टेप का आंसर करेक्ट है जिसने भी मुझे बताया है. 8,25,000. वेरी गुड. फर्स्ट स्टेप आंसर इज करेक्ट, 8,25,000. इसके बाद आप स्टेप 2 कर सकते हैं, बट स्टेप 2 करने के लिए पहले आप अकाउंट बना लीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टेप 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. Yes, Shubhangi, what you are asking? It's not clear to me. 8,25,000, not 9,25,000. It's 8,25,000 is the answer of first step. First step, beta, not the final answer. It's answer of first step only. Profits before tax, 8,25,000. With this answer, you have to start with the second step. No, it's 8,25,000. Why you are taking 850? It's 750. 10 lakh minus 250. ये शुभांगी 10 lakh minus 250 is 750. Subtraction. गलत कर रही हो. 825 is the step 1 answer. Step 2 के लिए आप देखो आपके पास क्या क्या है इसमें. Step 2 से रिलेटेड तो ज्यादा कुछ है ही नहीं बेटा. Only one item. In step 2, only one item, that is the loss on sale of investment, that will be added. Loss on sale of investment. Yes, very good. Very good, Anshika. Correct answer. I am not telling answer to all. Take your time.
मैं तब तक आगे का टॉपिक नहीं कराऊंगी जब तक आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस अनमोल, वेरी गुड. आयुष अग्रवाल, वेरी गुड. देखो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सब ठीक दे रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आप लोग कर रहे हो. बट मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स मतलब कहीं से देख कर रहे हैं, बुक खोल कर बैठे हैं, सॉल्यूशन में से कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू पीपल आर मेकिंग फूल ऑफ यू. आप चीटिंग अपने साथ कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे हैं. ये ध्यान रखना. बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ. क्योंकि आपने यहाँ शो ऑफ नहीं करना है कि मुझे आ गया, आपको सच में आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप बिना आंसर देके खुद करेंगे उसको सोल्व. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप बैठ के सिर्फ सुन रहे हो, सुनने से नहीं आएगा चैप्टर. सो आई एम शोइंग द आंसर, यू कैन सी योर mistakes. This is the answer. And first of all, see the investment account. This is the investment account. Balancing figure आपका परचेज आ गया है 1,25,000. लॉस आपका आ गया है 52,500. Now you can see the solution. You can match your solution. Loss on sale 52,500. प्रॉफिट बिफोर और सेकेंड स्टेप का जो आंसर है 877,500. देन ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए हैं और इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए हैं. तो आपका जो थर्ड स्टेप का आंसर आया दैट इज 10,02,500. टैक्स पेड 75,000. फाइनल आंसर 9,27,500. इसके जस्ट कॉन्टिन्यूएशन में आपको सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 125 जो आपके अकाउंट में आया था बैलेंस